Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over this topic, active and passive voice. Last time I gave you an exercise that was related to models and the sentences needed to be converted into passive voice. And some sentences were given for translation from Hindi to English. Right? So let us see what will be the correct answers of those statements. So the first sentence that needed to be converted into passive voice was she can write 3 poems in an hour. She can write 3 poems in an hour. So the correct answers for this would be 3 poems can be written in an hour by her, or 3 poems can be written by her in an hour. Both are. 3 poems can be written by her in an hour, or 3 poems can be written in an hour by her. Next, second statement was they must complete the homework by tonight. They must complete the homework by tonight. So the passive voice for this will be homework is an object, so we can use the homework must be completed by tonight. By them can be used, that is optional. You can write in bracket as well. For example, the homework must be completed by tonight. And in the bracket you will be writing by them, or directly you can write the homework must be completed by tonight by them. Another sentence, another way to do this can be by tonight, comma the homework must be completed by them. That is also correct. And another way is one more way can be done. The homework must be completed by them by tonight. But this is the last priority. Okay. So first priority will give to this. The homework must be completed by tonight by them. Or second, by tonight the homework must be completed by them. Okay. Next, fourth one. He will deliver the parcels next week. He will deliver the parcels next week. So the correct conversion for this would be the parcels will be delivered next week by him, or the parcels will be delivered by him next week. If both can be correct. Fifth one, you could repair this watch. Yes, Anand. You could repair this watch. This watch could be repaired by you. This watch could be repaired by you. Next, I should send the invitations. I should send the invitations today. Today. So the invitations should be sent today by me. First priority. The invitations should be sent today by me. I think I told you yesterday, whenever you see a compliment, especially adverb, today is adverb of time. You must use it before by section, right? Like by and anything. So the invitation should be sent today by me. That is the first priority. Okay. Yes, that can also be done. The invitations should be sent by me today. But listen to me, that doesn't sound well. Okay. Next, they would grow vegetables in the backyard. Vegetables would be grown in the backyard by them. Yes, that's correct. They sh- they would grow vegetables in the backyard. It will be converted as vegetables would be grown in the backyard by them. Okay. Next, she may take your photograph.
So object is your photograph. Listen to me, this will not be you photograph because your is possessive. So that is not interchanged. Your photograph may be taken by her. She may take your photograph. The passive form for this would be your photograph may be taken by her. 9. Yes. He used to drive the truck every day. Again, once again, every day is at work. So the truck used to be driven every day by him. Atulji, you missed every day. The truck used to be driven every day by him. Yes, second priority I'll give to this. The truck used to be driven by her every day. Okay, that will be correct. That can be correct. Now, 10th, we used to play cricket in this ground. We used to play cricket in this ground. So it will be cricket used to be played in this ground by us. Cricket used to be played by us in this ground. That can also be correct. But I told you generally we will be using complement just before the bifex. Cricket used to be played in this ground by us. Okay. Or cricket used to be played by us in this ground. That can also be. तुम्हें सम्मान दिया जाना चाहिए. Now translation. What should be done here? तुम्हें सम्मान दिया जाना चाहिए. You should be. अतुल जी ने किया है honored. That correct? That is correct. Or you should be given the respect. That is also correct. Or you should be respected. जो संगम जी ने किया है, that is also correct. Okay. You should be respected. You should be given respect. You should be honored. All are correct. Okay. Next. यह पत्र कल भेजा जाएगा. यह पत्र कल भेजा जाएगा. This letter will be sent by tomorrow. बढ़िया. अच्छा है. यह पत्र कल भेजा जाएगा. ये भी सही है. बाई टुमारो ने किया. बहुत बढ़िया. कल ये एक्चुअली में क्या है, टाइम के लिए बाई टुमारो लगा सकते हैं. बट दिस लेटर विल बी सेंट टुमारो. अब देखिए, ये बाई टुमारो और सेंट टुमारो डिफरेंस क्या है. हिंदी तो मैंने बोली है कि यह पत्र कल भेजा जाएगा. यह पत्र कल भेजा जाएगा. और मैं बोलूं यह पत्र कल तक भेजा जाएगा. तो कैन यू टेल मी इन द बोथ केसेस what will be the difference in English? जो बाई टुमारो आपने लगाया है, आई एग्री विद दैट. बट यस अतुल जी, मैंने सही बता दिया ना उसको. दिस लेटर विल बी सेंट टुमारो. यही आपका करेक्ट ट्रांसलेशन है. बट मैं अभी एक इन्होंने इन्होंने किया था बाई टुमारो. ठीक है, सेंस के आधार पर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ. पर मैंने दो स्टेटमेंट बोले. यह पत्र कल भेजा जाएगा और यह पत्र कल तक भेजा जाएगा. कुछ डिफरेंस है इन दोनों में. कैन एनीवन गेस? जो बाई टुमारो आपने लगाया है ना, एक्चुअली में बाई टुमारो, वो बाई टुमारो कल तक के लिए होता है. ये बात याद रखना. ठीक है, कल तक. हाँ, अगर टेंस पे आप ले रहे हैं कल तक भेजा जाएगा तो आप बाई टुमारो का यूज कर लेंगे. बट हम अगर हार्ड कोर ट्रांसलेशन करना चाहें तो यह पत्र कल भेजा जाएगा, मतलब एक निश्चित बात में कर दी है. तो दिस लेटर विल बी सेंट टुमारो, ऐसे आप कर लें. हाँ, कल तक के लिए आप कर सकते हैं दिस लेटर विल बी सेंट बाय टुमारो. डिड यू गेट माय पॉइंट? स्पेशली दोज हु आंसर्ड लाइक अनामिका जी एंड मयंक जी. बाय टुमारो कब लगाएंगे? कल तक के लिए. और कल भेजा जाएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे? केवल और केवल टुमारो. ओके, तो यह पत्र कल भेजा जाएगा. दिस लेटर विल बी सेंट बाई टुमारो. यहाँ पे नीड नहीं है. हाँ, सेंस क्या था, आप कल तक ले रहे हैं तो और वो सही हो सकता है. नेक्स्ट. उनसे पहले ही लिया गया है. उनसे पहले ही मिल लिया गया है. अतुल जी दे के साथ हैज कब से शामिल होगा ये बताइए.
उनसे पहले ही मिल लिया गया है। दे हैव बीन मेट ऑलरेडी, आप दीपाजी कर रही हैं। ठीक है। इन्होंने किया है संगम युग एक। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम, ये इन्होंने एक्टिव वॉइस में कर दिया है। बट हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ध्यान से देखिएगा। उनसे पहले ही मिल लिया गया। इसका मतलब ये उनकी उनकी की इंग्लिश वैसे होती है दे। ठीक है। और हाँ, एक इस सेंस में लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसको सम्मान देकर उनसे बोले तो ही हो सकता है, शी हो सकता है। बट यहाँ पे दे लेंगे जनरली। तो दे हैव बीन मेट ऑलरेडी, ये यहाँ पर करेक्ट है। अनामिका जी ने क्या है, दे विल बी मेट। ये विल भी तो कैसे भी नहीं आएगा। ये कैसे हो, विल भी कैसे आ गया, पहले ही मिल लिया गया है। मिल चुके हैं इसका मतलब, उनसे पहले ही मिला जा चुका है, ये अर्थ निकल रहा है। विल भी कैसे आ जाएगा, मिला जाएगा ऐसा होता तो विल भी आता। विल भी तो आएगा नहीं। मिल लिया गया है, दे हैव बीन मैट। और them बाद में क्यों आएगा, हमसे मिल लिया गया, दे हैव बीन मैट ऑलरेडी। ये सही है आपका, दे हैव बीन ऑलरेडी मैट भी सही हो जाएगा। या यहाँ पर अर्लियर का यूज पहले ही, नहीं ऑलरेडी का ही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी का ही यूज ज्यादा बेटर है। क्यों, कि यहाँ पर वो वाला सेंस है कि ये काम हो चुका है पहले। वो पहला अलग होता है, मतलब कुछ समय पहले। ऑलरेडी को यहाँ प्रायोरिटी देना चाहूंगा, उनसे पहले ही मिल गए हैं। ठीक है। अदर थिंग्स के लिए उनसे पहले ही मिल लिया गया है, कि इंग्लिश बनेगी हमारी दे हैव बीन ऑलरेडी मेट, या फिर दे हैव बीन मेट ऑलरेडी। तो ये आपका क्या हो गया, पैसे। अच्छा, और कुछ तरीका हो सकता था इसको। उनसे पहले ही मिल लिया है, या और कोई तरीका हो सकता था। याद रखेंगे, ये चुका है, चुकी ही, चुकी है, ये सब भी आप ये सही नहीं। और सब तरीके में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे उनसे है, तो उनसे का आप अगर जैसे कोई बताया था मैंने अभी, जैसे होता है ना, आप हिंदी में किसी को सम्मान देते हो, तो एक व्यक्ति को भी आप बोलते हो वे आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते, यस आ रहे हैं। यही ही हैज बीन मेट ऑलरेडी भी हो सकता था, शी हैज बीन मेट ऑलरेडी हो सकता है। ये सेंस क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। ये सेंस वो वाला होता है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है एक है, पर हम हिंदी में सम्मान देने के लिए उनसे लगा है ना। तो टीचर है तो उनको आप क्या बोलेंगे, उससे पहले ही मिल लिया गया, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। कोई शिक्षक है तो आप बोलेंगे उनसे पहले ही मिल लिया गया। तो कहेंगे आप राहुल सर से मिले थे पहले, मिले थे? बोले हाँ, उनसे पहले ही मिल जाएगा। तो वहां पर एक व्यक्ति की बात है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे लैंग्वेज में। हिंदी में सम्मान देने के लिए हम प्लूरल टाइप का यूज कर लेते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ी रहेगा। ओके। तो ही या शी हैज ऑलरेडी बीन मैट, या वही लास्ट में ऑलरेडी लगा सकते हैं, शी या ही हैज ऑलरेडी बीन मैट। नहीं, बीन मैट ऑलरेडी लास्ट। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। आगे बात करते हैं। इस कमरे को साफ किया जाता था। जाता था, जाता था मतलब जाया जाता था। ये चीज करता था, पीते थे। इस कमरे को साफ किया जाता था, बताएंगे जरूर। इस कमरे को साफ किया जाता था। यस, दिस रूम यूज टू बी क्लीन। बढ़िया। ओके, दिस रूम यूज टू बी क्लीन। बढ़िया। किताबें पढ़ी जाया करती थी, इसको भी बता देंगे। ये भी इसी में कर लेंगे। किताबें पढ़ी जाती थी या जाया करती थी, दोनों की बात एक ही है। द बुक्स यूज टू बी रेड। फिर से बताना चाहूंगा, हालांकि ये मैं तो सिंपल पास्ट बताया था, तब भी समझाया था। काफी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। ठीक है। मतलब था थी थी, उसमें यूज टू नहीं लगा हुआ। बताया था मैंने जब आपको पढ़ाया था, एक्शंस इन पास्ट पढ़ाया था। ठीक है। तो वो सेंस के आधार पर आप ले लेते हैं। हालांकि जब मैं बात करता हूँ, से हमने जनरली बात की, कोई काम किया करते थे या करते थे रेगुलर
एक हैबिट में था तो वहाँ यूज टू का यूज होता है, ये बात बताया है आपको। लेकिन ये साथ में याद रखेंगे कि कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बोला गया कि किताबें पढ़ी जाती थी, कहीं पर मिल जाए द बुक्स वर रेड, ये वाला था, इस कमरे को साफ किया जाता था, द रूम्स वर क्लीन। हालांकि इसका अगर हम सही वे में लें तो रूम को साफ किया गया था, ये अर्थ है। पर अगर ऐसा मिल जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लोग इसका यूज करते हैं और इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता, ठीक है। तो रहता था क्या, देयर यूज टू लिव अ किंग, नहीं बोलते, ठीक। ये चीज भी याद रखें, काफी बेसिक। एग्जाम्पल के लिए, मैं जानता था, आई न्यू होता है, इसका आई यूज टू नो बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा ही। आई न्यू, मैं जानता था, मुझे पता था, आई न्यू। तो उन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, वह जाना जाता था, तो इसको आप कहेंगे ही यूज टू बी नोन, ठीक है। लेकिन जाना जाता था तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ही वॉज नोन, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर, यूज टू आगे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है साथ साथ देखने में, कि जहाँ पर यूज टू का यूज ना करके पूरा सेकंड इज दैट क्लियर। ये बात मैंने आपको जब वो पढ़ाया था, सिंपल पास्ट तभी बताया। पैसे में भी ये चीज अप्लाई हो जाएगी। और ये बात भी बताई थी आपको कि बचपन में जब हम ट्रांसलेशन करते थे तो मैं जाता था, उसकी इंग्लिश भी आई वेंट बना देते थे। हालांकि वो अपने आप में पूरा सही नहीं है, लेकिन यूज होता है तो बहुत जगह मिल जाता है देखने को। तो हम सेंस क्या था कि मान लेंगे कि लैंग्वेज इज ऑल अबाउट यूसेज, है ना, एप्लीकेशन। जितना यूज में है तो लैंग्वेज है। ओके, तो हम लोगों ने इतना कर लिया है, ऑल ट्रांसलेशन एंड sentences for the conversion from active to passive have been done. Today we'll be diving in the topic that is past continuous for passive voice. तो पास्ट कंटिन्यूस में बताइए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इज एम आर प्लस बीइंग लगा रहे थे और थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। कोई गैस करके बता सकता है कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाए? इतना समझाया, बताइए गैस करके कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या आना चाहिए, बताएंगे जल्दी। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, फॉर्मेट क्या होना है इससे? प्रेजेंट तो बता रखा है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड होता है सब्जेक्ट के बाद, है ना। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा? इज देयर एनीवन कैन आंसर? बस इज एम आर की जगह वॉज पर आ जाएगा, बस सिंपल। यस दैट्स करेक्ट। तो क्या आप कर पाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज पर प्लस बीइंग होगा, आईएनजी नहीं होगा, आना होगा, चाहिए। अच्छा, आप एक्टिव वॉइस बता रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ठीक है। मैं पैसिव का पूछ रहा हूँ, टॉपिक पैसिव चल रहा है, पैसिव बताइएगा। पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? जैसे कि जब हमारे प्लस बीइंग किया करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए? बी, बीइंग, बी ई आई एन जी, ठीक। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग, ये हो जाएगा, प्लस मेथड प्लस बाय, बाय के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट नंबर। दीपा जी सही कर पा रहे हैं आप, यहाँ सब्जेक्ट आपने उसके इसमें लिखा है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बाय लगा दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका वॉज वर्ब प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जिसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। और ये आई गेस ये हम कर चुके हैं, राइट? नहीं, इसमें कर, ये नहीं किया। तो वॉज वर्ब, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसमें क्या ही खास बता दूंगा। बस रहा था, हो जाएगा, रही थी हो जाएगा, रही थी हो जाएगा, रहा है रही है। तो एग्जाम्पल के लिए आप दे रखा है, द फार्मर वॉज प्लॉइंग द फील्ड, प्लॉइंग द फील्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, द फील्ड वॉज बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर। इसका हमने प्रोनाउंसिएशन भी आपको सुनाया था, एक बार प्रोनाउंसिएशन फिर से सुनाएंगे उसका।
नो डाउट। लाउड, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है लाउड। क्लाउड, लाउड, यस लाउड, लाउड लाउड, लो, लो, लो होता है, इसको देख लेते हैं। लाउड, 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 प्रोनाउंसिएशन का सही करेंगे, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था, लाउड बोल रहा था, थोड़ा सा इसका लाउड वाला आओ। यस, तो ये क्या हो गया, द फार्मर वॉज प्लाउइंग द फील्ड वॉज बींग प्लाउड बाय द फार्मर। लाउड वाला आओ साउंड है ना। द फार्मर वॉज प्लाउइंग द फील्ड वॉज बींग प्लाउड बाय द फार्मर, ये हो गया। नेक्स्ट, दे वर पिकिंग सम फ्लावर्स, तो सम फ्लावर्स वर बींग पिक्ड बाय देम। कर पाएंगे, चलिए बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप समझ पाएंगे तो। ही वॉज टेकिंग टी, he was taking tea, he was taking tea। द कहाँ से लगा दिया, द तो मैंने बोला ही नहीं। रिमेम्बर, ये द वगैरह आप लगा सकते थे अगर मैं हिंदी बोलता और आप इंग्लिश बनाते, बट जब मैं सेंटेंस ऑलरेडी बोल रहा हूँ उसमें नहीं लगा हुआ है तो उसी हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। टी वॉज बींग टेकन बाय, यस, टी वॉज बींग टेकन बाय, गुड, वेल डन। दे वर टीचिंग हिम, they were teaching him, do this one, they were teaching him। बढ़िया, he was being taught by them, correct। he के अकॉर्डिंग was आ गया, he was being, अतुल जी what you've done, he was taught by them, no that's incorrect, he was being, yes he was being taught by them। Next, I was, sorry, everyone was playing cards, everyone was playing cards, पत्ते खेलना, चूहे वाले पत्ते, everyone was playing cards, everyone was playing cards, everyone was playing cards, literally। Kavitri ji, by everyone, everyone was playing, and were, okay, that's correct, cards, that's correct. But by everyone is not you, yes, everyone was playing cards, everyone is answer, everyone cards were being played। दीपा जी ने किया है एवरीवन कॉमा लगा दिया, नहीं, सिंपल था इसमें, एवरीवन बोले जनरली हम क्या करते हैं, बाई का यूज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखें। क्यों ऐसा, रीजन रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन होता है आपका कि जनरल वे में सबके द्वारा खेला जाता है, ऐसे बताएंगे, नो वन वॉज डूइंग दिस। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है जैसे कि अ, मैंने बताया कि एवरीवन यूज नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज में एक चीज और होती है, इस चीज को थोड़ा याद रखें कि कभी कभी हम चीजों पे जोर देते हैं ना, कभी कभी चीजों पे जोर देते हैं, तो उस वाले केस में अगर आप एवरीवन कर रहे हैं बाय एवरीवन, तो वहां पर वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट ग्रामेटिकली हम जब पढ़ते हैं, जब आपको एकेडमिकली भी पढ़ाया गया होगा, तो आपको यही पढ़ाया गया होगा कि एवरीवन या नो वन या एनीबडी या समबडी जब आता है इस वाले केसेस पे, या दे वाले में पढ़ाया गया था, जो ऑप्शन रहता है उसमें, इस वाले केसेस में हम
क्या करते हैं, बाई वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। लैंग्वेज में हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम हमें जोड़ देना है एग्जाम्पल के लिए, कोई काम किया गया सबके द्वारा, तो हम कहते हैं कि दिस वर्क इज डन बाई एवरीवन। बाई एवरीवन, मैंने बाई क्यों लगाया, जबरदस्ती लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पता चले सबको कि सबके द्वारा किया गया है। हाँ, वो केस आपका हो सकता है, बट वो लैंग्वेज में ही होगा। अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर हम इसको लगाते नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपनी पुरानी किताबें उठा के देखेंगे एकेडमिक की, तो वहां पर आपको रूल्स मिल जाएंगे इसके ऊपर। बट लैंग्वेज में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। ठीक, लेकिन वो केस क्या होगा, एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि हमें ये दिखाना है कि पर्टिकुलर क्या है। यस, आप लोग कर पाए यहाँ पर। कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? मैं एक बार और स्टेटमेंट बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। नो वन, नो वन वॉज डूइंग दिस। नो वन वॉज डूइंग दिस, सिंपल हो जाएगा, दिस वॉज नॉट बीइंग डन, ऐसे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसमें भी अगर एम्फेसाइज करना होता है लैंग्वेज के तौर पर, तो क्या करते हैं, मैंने नॉट लगा दिया ऑलरेडी। अब हम क्या कर सकते हैं, नो वन तो लगा नहीं सकते बाइक के बाद। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर बाइक के बाद लगाना होता है एम्फेसाइज करने के लिए, तो क्या लगाते हो, क्योंकि नो वन लगाने से रहे। कैन एनीवन गेस? लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया कि एम्फेसाइज करने के लिए बाइक यूज कर सकते हैं, केवल लैंग्वेज में, है ना। तो दिस वॉज नॉट बीइंग डन कर दिया, बाई के बाद क्या लगाएंगे, नो वन तो लगा नहीं सकते। अब क्या लगाएंगे, नो वन का पॉजिटिव जानते हैं कोई? नो वन का पॉजिटिव क्या बन सकता है यहाँ पर? हालांकि वो नेगेटिव के लिए भी यूज किया था हमने यहाँ पे। बाई नन तो नहीं लगा सकते क्योंकि नॉट ऑलरेडी आया हुआ है, समझ लीजिए एनी वन आ जाएगा। यस, दैट्स करेक्ट, एनी वन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये आप बोल सकते थे कि दिस वॉज। ओके, एक दिन मैंने बोला तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि मैं वहाँ पे ग्रामर समझा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था, ऐसे मतलब एग्जाम्पल है, तो इनके अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है कि दिस वॉज बीइंग डन बाय नो वन। तो मैंने कहा था नहीं, इसको ऐसे ना करके ऐसे कीजिए, दिस वॉज नॉट बीइंग डन, राइट। तो अब आपने यहाँ पे नॉट ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो वहां पर नो वन नहीं आ सकता, एनी वन आएगा, इस बात को भी याद रखना। नो बडी भी नहीं आ सकता क्योंकि वो नॉट लगा हुआ है। दिस वॉज नॉट बीइंग डन बाय, दिस वॉज नॉट बीइंग डन बाय एनी वन। बट जनरल वे में हम क्या यूज करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नो वन वॉज डूइंग दिस, इसका हो जाएगा वॉज नॉट बीइंग डन। ठीक है, इट वॉज नॉट, सॉरी, दिस वॉज नॉट बीइंग डन, सिंपल। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। एनी वन का इसलिए बताया आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि लैंग्वेज में हम एम्फसाइज करते हैं किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, दिस वॉज नॉट बीइंग डन बाय एनी। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है। ये मुझे याद आ गया, सारे दिन यूज क्या होता है, एक तरह से लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं, बट जनरल वे में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि वहाँ पर हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सेंस में। चलिए, तो ये आपको क्लियर हुआ है। नेगेटिव और करेंगे, ही वॉज नॉट प्लेइंग काइट। 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 Yes, so you're doing well. Kite was not being laid by, oh, sorry, I spoke incorrect, I guess, huh? Sorry, the statement must be, मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया था क्या? I was not flying the kite, ये होगा जो played अगर बोला है तो गलत बोल दिया होगा, सॉरी फॉर दैट। I was not flying the kite, okay, playing the kite बोल दिया था, okay, flying होगा, okay, I was not flying the kite, I was not flying the kite,
काइट वॉज नॉट फ्लाइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फ्लोन। फ्लाइट नहीं होता, फ्लोन। आई वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। द नहीं बोला, द नहीं बोला तो द नहीं लगेगा, और द बोला था। द काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय, यस। आई वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट, द काइट वॉजंट बीइंग फ्लोन बाय मी, यस। ऐसे बताएंगे मुझे, इंट्रोगेटिव में बनाना है। वॉज ही कुकिंग द मील, वॉज ही कुकिंग द मील, मील, MEAL, was he cooking the meal, was he cooking the meal, yes, was the meal। अनामिका जी ने कर ली है, सावित्री जी, was he being cooked the meal, हैं, सावित्री जी। ऑब्जेक्ट, was he cooking the meal, what are you doing, yes, Ruby, sorry, Meher ji, yes, yes, those who are doing this, Meher ji, make sure you're writing them, yes, that's right. And at the end you'll be adding question mark. Was the meal being cooked by him? Okay, correct. Next, weren't you uh, talking with him? Weren't you talking with him? Or I can also say, were you not talking with him? Were you not talking with him? Convert this one. Were you not talking with him? Were you not talking with? Were you not talking with him? Were you not talking with him? Meal is singular unit. Yes, here it is considered as singular. Meal. Okay, meal, singular. Okay, was he not being taught by you? With you are missing. I said you weren't you talking with him, or were you not talking with him? Okay. So yes, wasn't he being talked with you, with by you, talked with by you? Am I audible? Were you not talking with him? This was the sentence. Okay. Were you not talking with him? So when we are using with him, I guess I told you this, with or to, anything in that case. Uh, when you are using with or to, you must take that in the passive voice as well. So it will be, wasn't he being talked with by you, or was he not being talked with by you? The one with is used because that was there, that was present in active voice as well. So that must not be eliminated. उसको हटाना नहीं है। ठीक है? Was he not being talked with हो जाएगा। टॉक यहाँ पे टू का यूज ही नहीं किया था, टॉक टू वाला बोलता तो टू लगा देते, टॉक विद बोला। नेक्स्ट, व्हाई वर यू बीटिंग हिम? Was he not being talked to with you? No, that's completely incorrect. टू भी लगा दिया और with भी लगा दिया आपने। सिंपल सा होगा यहाँ पे, was he not being talked with you, या फिर wasn't कर सकते हैं, wasn't he being talked with you, oh, sorry, talked with by you।
बाई लगाएंगे पहले वाले में, वॉज ही नॉट बीइंग टॉक्ड विद बाई यू, या फिर वॉजंट ही बीइंग टॉक्ड विद बाई यू। अगर टू वाला केस होता तो आप टू लगा देते, टॉक टू बाई यू, ऐसा हो जाता। पर स्टेटमेंट मैंने टू वाला केस बोला ही नहीं। लेकिन दोनों हम जानते हैं कि दोनों का यूज हो सकता है। टॉक टू एक एक बताया था, मीनिंग अलग है। एक वन डायरेक्शनल टॉकिंग होती है तो टॉक टू करते हैं, और दोनों एंगेज होते हैं टॉक विद करते हैं। इस बात को पता होना चाहिए, पहले बात को। Why was he being beaten by you? Okay. Why was he being beaten by you? Correct. तो ऐसे नेगेटिव बन जाएगा इसका, है ना? Why wasn't he being beaten by you? So why was he not being beaten by you? Good. Tell me another one. Who was beating him? Can anyone tell this? ये क्वेश्चन एक होता है, इससे आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब में एक ही चीज रखती है। जब भी हु का क्वेश्चन आए ना, हु से शुरू हो क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे बाई हुम लगा देते हैं स्टार्टिंग में। बाई हुम, हु वाज बीटिंग हिम, बाई हुम के बाद आप लगा दीजिए, और बाद में बाई लगाने नीड ही नहीं है। ठीक है, हु वाज बीटिंग हिम। ट्राई दिस, इफ यू आर अनेबल टू डू देन आई विल हेल्प यू मेकिंग दिस पैसिव फॉर्म। बाई हुम you you were beaten. Okay, let me see what else. By whom was he beaten? By whom were you beaten? By